अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह आज हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। आई हैव टोल्ड यू अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. We have studied the two ones, the chain isomerism and the position isomerism. Today we will cover the next one, that is the functional group isomerism. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये वो ग्रुप होता है, यानी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which impart special or specific properties to a organic compound, to an organic compound. If the compounds having the same molecular formula but different functional group, they are said to be having functional group isomerism. Like on the screen, you can see dimethyl ether and ethyl alcohol. Both have same formula C2H6O, but ether have functional group oxygen and ethyl alcohol have OH as a functional group. These both have same molecular formula but different functional groups. So these two will said to have functional group isomerism. Next one is metamerism. This type of isomerism is due to the unequal distribution of carbon atom on either side of the functional group. अब functional group के दोनों तरफ कार्बन आइटम की डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ है, यानी अगर एक तरफ एक कंपाउंड में 2 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड पे 2 हैं तो लेफ्ट पे भी 2 है, लेकिन दूसरे कंपाउंड में राइट साइड पे 1 है, लेफ्ट साइड पे 3 है. लाइक आप देखिए डाइथाइल ईथर में इथाइल आपको बेटा इथेन जो होती है CH3CH3, उसमें से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें यानी CH3CH2, इट विल बिकम एन अल्काइल ग्रुप नेम्ड एज इथाइल. डाई मतलब 2, डाई इथाइल ईथर, तो O के दोनों साइड पे 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं CH3CH2O CH2CH3. बट इन केस ऑफ the other compound, that is methyl and propyl ether, उसमें ऑक्सीजन के एक साइड पे एक अल्काइल ग्रुप CH3, दूसरी साइड पे 3 कार्बन है CH2 CH2 CH3. अब देखो both have same molecular formula but different structural formula and have unequal distribution of carbon atom on either side of the functional group. So this type of isomerism is named as metamerism. Let me show you another example of metamerism. You can see on the screen beta, the next example is diethyl ketone, मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन. अब दोनों में फंक्शन ग्रुप सेम है कीटोन, लेकिन डाइथाइल में दोनों साइड पे 2 कार्बन है CO यानी कार्बोनाइल ग्रुप के, और मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन में कार्बन CO कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे 1 कार्बन, 1 अल्काइल ग्रुप CH3, and on the other side it has 3 carbon. So these both have unequal distribution of carbon atom on the both sides of the functional group. This type of isomerism is called as metamerism. The next type of isomerism is called as the, you can see on the screen, tautomerism. This type of isomerism arises due to shifting of proton from one atom to the other in the same molecule. कैसे? How? आप स्क्रीन पे देखिए बेटा, जो तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये तो बहुत कॉमन सा स्ट्रक्चर है, प्रोटीन में जो होता है अमीनो एसिड्स का. बट फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप देखिए सेंट्रल कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं. ऑन वन साइड इट इज अल्काइल ग्रुप, ऑन द अदर साइड इट इज NH2, ऑन द टॉप इट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड प्रोटॉन. ठीक है, दूसरे में देखिए आप क्या हुआ है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक हाइड्रोजन शिफ्ट होके NH2 के साथ अटैच हो गया है एंड इट हैज चेंज टू Na3+. अब क्या हुआ है? शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन. शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन से these two will be known as to show tautomerism. ठीक है, एक ही कंपाउंड के अंदर प्रोटॉन के शिफ्ट होने से it has shown a type of isomerism called as tautomerism. ठीक है, the last is, ये थी 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो आपने अब तक स्टडी कर ली है. The second and last type of isomerism is cis trans isomerism, और इसको geometrical isomerism भी कहते हैं. As its name shows, geometrical mean geometry related to the
अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस, ठीक है। यानी जब आप उसको 3 डायमेंशनली स्टडी करें, आप उसकी ज्योमेट्री देखें, आपको पता है कि 2 कार्बन एटम that are joined by a single bond, they are capable of free rotation about it। यानी अगर बेटा एक एक आपके पास रॉड है, उसकी दोनों साइड्स पे 2 आपने बॉल्स हैं और आप उनको इजीली मूव कर सकते हो, ठीक है। दे आर फ्री टू मूव, फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। बट व्हेन 2 एटम्स आर जॉइंड बाय डबल बॉन्ड, अब जब उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, दे कैन नॉट रोटेट फ्रीली एज अ रिजल्ट। तो अब वो उतना फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते जैसे वो एक सिंगल बॉन्ड के केस में फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको रॉड की एग्जांपल दी है, अब उसमें डबल बॉन्ड कंसीडर करें तो फ्री रोटेशन, उतनी फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। As a result, the relative position of the various group attached to these carbon atoms get fixed and give rise to cis trans isomerism। इससे क्या हो जाता है कि अब उस डबल बॉन्ड के इर्द जितने ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, यानी दोनों कार्बन के साथ, यानी बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन ए कार्बन बी, तो कार्बन ए के साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड होंगे एंड कार्बन बी के साथ, so the groups attached to both of these carbons, they will get their positions fixed, ठीक है। वो अपनी पोजीशन, उनकी फिक्स पोजीशन हो जाएगी। अब कैसे, जैसे आप नीचे स्क्रीन पे देखें, एक कंपाउंड के नीचे लिखा हुआ है सिस और एक के नीचे लिखा हुआ ट्रांस। दिस इज 2 ब्यूटीन, ब्यूटीन हैविंग डबल बॉन्ड। अब सिस में देखें दोनों अल्काइल ग्रुप जो कि मिथाइल हैं, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। बट इन ट्रांस you can see the similar group lie on the opposite sides of the double bond, ठीक है। similar group जो है ये opposites, they lie on the opposite sides of the double bond। such compounds which possess the same structural formula but differ with respect to the position of the identical groups in space, they are called cis trans isomers, and the phenomenon is known as the cis trans or geometrical isomerism, ठीक है। इसके लिए कंडीशन जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है फॉर अ कंपाउंड टू शो geometric isomerism is that 2 groups attached to the same carbon must be different, ठीक है। इसके लिए ये शर्त है कि वो एक कार्बन के साथ जो दोनों ग्रुप्स अटैच हुए दे शुड बी डिफरेंट। एक एग्जांपल आपने ये देखी नीचे, एक एग्जांपल 2 पेंटीन की दी गई है और एक 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोटीन की दी गई है। आप देखिए बेटा दोनों में हर कार्बन के साथ आप 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन देखें, कार्बन ए के साथ ब्रोमीन हाइड्रोजन, कार्बन बी के साथ क्लोरीन, ठीक है, मिथाइल, तो डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। इसी तरह 2 पेंटीन में कार्बन ए के साथ इथाइल हाइड्रोजन, कार्बन बी के साथ मिथाइल हाइड्रोजन, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है। So in all these examples of cis trans isomerism, you will see the similar group in case of cis form, the similar group lie on the same side of the double bond, ठीक है, and in case of trans, the same group lie on the opposite sides of the double bond, ठीक है। The rotation of the 2 carbon atom joined by double bond could happen only if the pi bond breaks, ठीक है। फ्री रोटेशन उसी वक्त पॉसिबल होगी अगर पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। दिस ऑर्डरली कॉस्ट टू मच एनर्जी मेकिंग ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल। तो वो कहते हैं कि अगर आप कहें कि इसमें भी फ्री रोटेशन पॉसिबल है, कि यही आप एग्जांपल ले लें 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन की, ब्रोमीन जो है वो इजीली नीचे आ जा सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इजीली रोटेट हो सकता है, ये दोनों 180 पे आ सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि इससे पहले डबल बॉन्ड हैव टू बी ब्रोकन डाउन, और उसके लिए इतनी अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसलिए ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है दे आर स्टेबल वंस, ठीक है। आज बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। इफ यू हैव any kind of difficulty regarding this chapter or any concept that you haven't understood yet, you can discuss me in your WhatsApp group, you can ask question. Hope you have understand the whole chapter। inshallah iska test bhi hoga, but from Monday inshallah we will start our chapter number 8। Allah Hafiz।